تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ دھیان کریو حضرت، ایک کدا ہے 500 چپ کر کے نا جا کے دے آئی۔ ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے۔ کوئی عاشق گزرا، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اور عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتے نہ کتے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سبڑیال، ایک بزرگ گزرے ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے۔ اور بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے۔ پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے، بالکل اسی طرح جایا کرتے تھے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی، ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت۔ مدرسہ بھی تھا ان کا ایک، وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر، باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے۔ بڑی کمال شخصیت۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی، جون چل اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون، جان نکالنے والا جون، تقریباً ٹیمپریچر 47 48 پہ چلا گیا ہوا۔ اب جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے۔ اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا ان کی، آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا۔ ایسی سونی دعا کرتے تھے اور وہ ہر بندے نے کہنا، لیکن بارش ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں۔ کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس، کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر۔ کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے نا چھپ گیا۔ اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک اس سائڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی، دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے۔ کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی، وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، تو بارش کدھر سے آئے؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تاڑی پہ، ماں بھوکی ہے، بچے بھوکے، بارش
कहते हाफिज साहब उसको देख के ना रो पड़े, उसकी बाकायदा आंखों से आंसू गिर रहे थे। हाफिज साहब रो पड़े, शापर का मुंह खोला, शापर को फोल्ड किया ताकि इसको परेशानी हो ना, करके ना उसके सामने रखा। पता नहीं कब की भूखी थी, वो टूट पड़ी है शापर पे ना, उसने पेट भर के कीमा खाया। जो कीमा खा लिया तो उसने आसमां की तरफ मुंह करके ना को आवाज़ निकाली। तो मलक साहब कहते हैं कि जब हम गए तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन जब वापस आए तो बाराने रहमत में नहाते हुए आए। अरे साहब जदों भी कोई मामला होए तो चेक करियो, किते ना किते कोई रोंदा हुंदा है जिहड़ा इस 500 दा हकदार। अल्लाह दवे हजरत कदी बूए बंद ना कर। अल्लाह मैं खुद कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है मैनेज करना, लोग बहुत तंग करते हैं, फिर भी तंग ना होइयो है। वेखियो मालक ने कितनी मेहर की हजरत है। और कोशिश करियो कि अल्लाह दी मखलूक उते अपना हाथ नरम रखिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पकड़ के झाड़ू दे रहे, सारा घर साफ किया, मशक ली, पानी लेने चले गए, पानी लेके आए, ठीक है जी। आके तो आटा गूंदा, आटा तैयार होने के लिए रख दिया, सालन बनाया, ठीक है जी। सालन पक गया, रोटी पकाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी ली, अम्मा के पास आए, अम्मा को उठा के बिठाया, एक नवाला तोड़ा और उसको सालन में डिप किया और नवाला अम्मा के होंठों से लगाया ताकि अम्मा को पता लगे कि नवाला खाना है, क्योंकि बोलना नहीं था ना अभी, ये अभी अम्मा को पता ना चले कि अबू बकर नहीं है, इसलिए बोले कुछ नहीं, नवाला होंठों से लगाया ताकि अम्मा समझ जाए कि नवाला खाना है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नवाला होंठों से लगा, साथ ही अम्मा बोल पड़ी और कहती क्या है, आज अबू बकर नहीं आए आज अबू बकर नहीं आए, क्योंकि मिजाज मुबारक में जलाल भी था। आपने फरमाया ओए इसको तो नज़र आता है, मैं तो अभी इतनी देर लगा रहा कि पूछेगी तो बताऊंगा, इसको तो नज़र आता है, और अगर इसको नज़र नहीं आता है तो इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए। अब फरमाते मैंने कहा अम्मा तुझे नज़र आता है, वो आगे से कहती है ए आने वाले अल्लाह की इज़्ज़त व अज़मत की कसम मुझे नज़र नहीं आता। आपने फरमाया फिर तुझे कैसे पता है अबू बकर नहीं आए। तो फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं थी। कहती आने वाले पता इस तरह चल गया क्योंकि मैं नवाला चबा नहीं सकती है, मेरे मुंह में दांत कोई नहीं। जब अबू बकर आते हैं तो पहले नवाला खुद चबाते हैं, उसको नरम करते हैं, और जब वो नरम हो जाता है उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं उसको निगल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। पढ़ा हमने ज़रूर है लेकिन की उन्होंने पढ़िया तो कोई नहीं, लेकिन की दब के की। इसलिए हज़रत ऐस पासे आओ, इस वक्त हमारे पाकिस्तान को प्यार की ज़रूरत है। देखो तो सही पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, और असी हज़रत अजीब कौम है, नहीं दीन सीखो, दीन सीखो हज़रत, और अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ हो, गुस्सा अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। वो हम जनाजे पे चले गए, अमीर का जनाजा था, राशि बड़ा ज़्यादा था। वो अभी जो वक्त दिया गया था उसमें को मिनट 1.5 मिनट बाकी था, तो किसी बंदे ने ना हज़रत को गुजारिश की कि हज़रत को गल सुना दो। हज़रत चुप। फिर किसी बंदे ने कहा हज़रत कोई बात सुना दें, हज़रत फिर चुप। फिर किसी बंदे ने कहा हज़रत कोई थोड़ी सी तरबियत फरमा, हज़रत फिर चुप। अब मैं सामने खड़ा था, मैं यार भला को हज़रत गल सुना ही छड़ दिया, लेकिन जनाजा पढ़ाया, दुआ की, हम खान का वापस। अब वो क्योंकि मेरे अंदर बात चल रही थी तो पता नहीं हज़रत ने को तवज्जो फरमाई कि बात अंदर से ज़ुबान तक आ गई। मैंने अर्ज़ की हुजूर आपने जनाजे पे तकरीर नहीं फरमाई, तो मेरे तो सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल में से सवाल निकाला। पंजाबी बोलते थे, मुझे फरमान लगे मौलवी जी की होना सी तकरीर की, मैं जनाब है लोगों ने कुछ सीख लेना सी। ओए होए मुझे आगे से फरमान लगे मौलवी जी जिहड़ी मैयत मोढ़ियां ते लैके आए सन उहदे कोलों ते सिक्ख्या कख नहीं, मैं इन्हां नूं की सिखाना सी। चस्का लाते हैं हम, इसका लगाते हैं और आप
फरमान लगे जिहड़ी मैयत मोंडियां ते चुक के ले आए सन उहदे कोलों ते सिੱਖਿਆ काकू मैं इन्हां नूं की सिखाना। ये सीखण वाले हुंदे ते जनाजगा सिखाउण वास्ते बहुत कुछ सी। जनाजगा दे नाल जिहड़ियां इन्नियां कबरां सन वो बहुत। और हजरत फिर जिसने सीख लिया फिर वही बोल पड़ा, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले। हजरत ए सिर ते इंजन कर छड़दा है लेकिन ए अंदर वाला मंदा ये किते मनदा। जिदन ए मन लिया फिर असीं घट तोलना ही कोई नहीं है। जिदन एनू मना लिया फिर उस दिन असीं दो नंबरी करनी। ए इंजन कर छड़दा है लेकिन ए वाला मनदा। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो कदी अपने आप नूं पढ़े। जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़े। एवें ही लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना है जड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़े। हजरत साहब बातें बड़ी हैं लेकिन कुछ मेरी भी मजबूरी है, इशा भी पढ़नी है। मैं बस एक की गुजारिश करांगा उन ऐदे वाले पासे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये न दो। हमने सिर्फ ये दी हुई, ये हमने उनको दिया, ये असी रजिया तो शकीला ने दे छड़े। ये उनका है, ये उनका है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हक ना अदा फरमाया हो अमीरी का। मैं फिर अक्सर सोचना साडा की बढ़ेगा। इसलिए पुत्र रब दवे, मुझे पता है बहुत मुश्किल है मैनेज करना, फिर भी करियो। लेकिन अपने बूए गरीबां लिए कदी बंद करियो ना। खुल ये तब से ही काम ख़राब हुआ है कि जब से हमने अकेला खाने का प्रोग्राम बना दिया। मिसाल के तौर पे हज़रत ये कुरान पता क्या कहता है, अपने सारे खर्चे निकाल के, ये मसलन मेरे पास 500 है मिसाल के तौर पे, तो कुरान कहता है कि ये 500 तेरा कल्ले दा नहीं, इसमें और भी हकदार है। और वो हकदार कौन है? पहला वबिल वालिदैनि इहसाना, पहले हकदार कौन ने? मेरे। और वो इस तरह के हकदार हैं कि अगर मेरी अम्मी या मेरे अब्बू पूरे का पूरा 500 मेरी जेब से निकाल लें तो मैं उनको पूछ सकता नहीं। फिर उसके बाद हकदार कौन है? वबिल वालिदैनि इहसानन वज़िल कुर्बा, मेरे रिश्तेदार ए हकदार नहीं। फिर वल यतामा, यतीम रिश्तेदार च होए तो फिर डबल सवाब। हाँ जी, वबिल वालिदैनि इहसानन वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फिर लेकिन साहब जो मिसबाई साहब कहते हैं कि मैं 500 कले ही खाने ने, फिर वो की करते हैं? फिर वो लाते हैं खिच। फिर मिसबाई साहब सिर ते हथ रख के कभी इधर नसते हैं कभी इधर। वो वेखो जी मेरे ते किसी ने जादू तो नहीं कर चढ़े यार। अगे हज़रत साहब भेड़िए बैठे दे ने इंतजार में कोई आए हज़रत साहब, लेकिन हज़रत साहब कुरान बिल्कुल वखरी बात बता रहा है। कुरान सूरह फजर में क्या कहता है? जो खिच लगती है तो कानू लगती है खिच। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। तेनू क्या ही 500 सारा तेरा नहीं, विच यतीमां दा भी है। तू कल्ला खान लगा, तू कल्ला खान लगा। पहली वजह खिच दी, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। फिर खिच दी दूजी जगह वजह वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। तेनू क्या ही 500 सारा तेरा नहीं, विच मस्कीना दा भी। तू कल्ले खान लगा। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। यतीम नूं धक्के मारना। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। मुझां लगियां ने जी, नीला काला खट्टा पीला हरा और किहड़े किहड़े इलम कढ़ लेने ने। लेकिन कुरान कहता है खिच तेन क्यों लाई है? क्योंकि तू यतीम दी तकरीम। इसलिए हज़रत साहब जदों भी कारोबार विच कोई होए
ਠੰਡਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ 500 ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮਾ ਯਫਅਲੁல்லாਹੁ ਬਿਆਜ਼ਾਬਿਕੁਮ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ कल्ला वल्ला तुकरिमून अल यतीम। मैंने हजरत खुद मेरे हजरत साहब के मुरीद थे, हजरत साहब से भी सुना और फिर मैंने उनको मुलाकात भी मेरी हुई है। वो हमारे वो पीर भाई थे कोई, तो उनको ना ब्लड कैंसर हो गया और पता तब चला कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही थी। टेस्ट वगैरह डॉक्टरों ने किए, उन्होंने कहा जी 2.5 महीने आपके पास, 3 महीने। तो उन्होंने कहा भाई मरते जाना है तो चल पाकिस्तान मरिए चल के अपने विच। आपको पता है हजरत जो हमारे अहबाब बाहर होते हैं ना ज़्यादा, तो वो फिर फैमिली को उनकी आदत कम होती है और महीने बाद आने वाले पैसों की आदत ज़्यादा होती है। तो जो फिर वापस आ जाते हैं ना और वापस भी जो बिल्कुल क्लोज करके आते हैं सारा, तो वो उंज नहीं किसी ने चंगे लगते हैं जी। वो भी ऐसा ही था, उन्होंने बताया तो नहीं कि मुझे कैंसर है, बस उन्होंने ये कहा कि मैं सारा कुछ छड़ के आ गया। वो सबको यही फिक्र थी छड़ के आ गया बात हूँ की बनेगा। वो यशियाँ कितने जान गई नाले इधर तो रोक टोक भी होनी कितने चलना है, राती 2 बजे कितों आया है। वो हूँ जी ना किसी को चंगा लगे। बड़ा सब ने उनके साथ वो अजीब गरीब सा सलूक किया। वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मरना तो है भी, लेकिन इन्हां च मरना बाहर ही मरांगा जाके। तो नाले उन्होंने कहा मैं बाहर ही दबियो, मेरी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं भेजनी कोई। वो चुपके से जाके टिकट करवा ली वापस। वो कहीं रात को ना बारिश आई बड़ी ज़्यादा, तो घर के बिल्कुल साथ ना यतीम भतीजियाँ और बेवा भाभी भी रहती थी, लेकिन कभी पूछा ही नहीं क्योंकि बोलचाल कोई नहीं थी। वो तो बेचारा फिर बाहर है जो हम इधर रह रहे हैं। हमने अपनी आंखें बंद कर ली हुई हैं, हमने अपने कान बंद कर लिए हैं, अपनी बीवियों की आंखों से देखते हैं और अपनी बीवी के कानों से सुनते हैं। तो क्योंकि मेरी बहन तो मेरी बहन है ना, मेरी बीवी की तो नंद है, क्योंकि अपनी आंखें बंद है, बीवी की आंखों से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी सगी बहन भी नंद ही महसूस हो रही है। क्योंकि भाई तो मेरा है, बीवी का तो देवर है, बीवी का तो जेठ है। क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हुई हैं, इसलिए मुझे अपना सगा भाई भी देवर और जेठ ही नजर आ रहा है। खुदारा अपनी आंखें खोलें और अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें, आपको आपके सारे रिश्ते अच्छे लगेंगे। मैंने हजरत साहब जितनी देर तक ये औरतें और ये ज़मीनें और पैसे भाइयों में नहीं आते, अल्लाह मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन क्योंकि गली मोहल्लों में पला हूँ, जवान हुआ हूँ, मैंने बड़ा कुछ देखा है। मैंने अपनी आँखों से देखा हजरत, बारिश बरस रही थी, सियालकोट का मिजाज है, तो जाते हुए माँ बेटों को क्या कह रही है कि आज ज़रा मौसम बारिश वाला है, तो मैं वो मूलियाँ लेके ना, तो हम पंजाबी में कहते मूली खंडा कर लूँगी, तो तुमने कहीं ठहरना नहीं, सब ने घर टाइम से आना है। तो फिर ना रात को मूली के पराठे और साथ चाय चलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा जी, पहले छोटा आ गया सबसे ना, तो माँ क्या कहती है, वो कहती है थका आया है, अगर कहे तो पराठा बना दूँ, तो छोटा क्या कह, अम्मी क्या कह रही हैं, भाइन भी आ लेंदे, भाइन बगैर को परोठे का मज़ा आना है। ये मैं आपको उस दौर की बात सुना रहा हूँ जब तक भाई भाई में औरत और पैसा और ज़मीन आई, परोठा नहीं सी लंघदा जी भरा तो बगैर। और मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ा पहले आ गया, तो माँ क्या कहती है, अगर तू कहे तो पराठा बना दूँ एक, तो बड़ा क्या कहता है, जी की कर दे पे हो, छोटे ही आ लेंदे, रल खावांगे तो मज़ा आएगा। कभी वो वक्त था कि हजरत भाइयों के बगैर पराठा भी नहीं था खाया जाता है, लेकिन अब वो भी वक्त है कि मुझे सबसे बुरा अगर लगता है तो अपना भाई लगता है। वजह क्या है, क्योंकि अपनी आँखों से देखते नहीं, अपने कानों से सुनते, और बाज़ दफ़ा इसी तरह बीवियाँ रगड़ी जाती हैं, उधर भी हमने आंखें बंद की होती हैं। नहीं, मैनेज करें इसको, अपनी आंखों से देखें, आपको हर रिश्ता सोना लगेगा। तो वो तो बेचारा वैसे बाहर बैठा था, जो इधर से फ़ोन जाना, भतीजियाँ ने यह किया है, भाभी ने यह किया है, कई बार बेचारा बाहर से आया था, कभी जाके यतीम भतीजियों को देखा भी नहीं, कभी बेवा भाभी का हाल भी नहीं पूछा कि किस तरह दिन लंघते हैं। और रात को बारिश बरसी तो सारी रात ना साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज़ आती रही। कई बार दिल किया कि रात को जाके देखूं, फिर नहीं अच्छा लगा,
صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائیں، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا، جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی۔ وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا بڑے ابو آئے، پہلے چیخ نکلی پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ بڑے ابو آئے۔ بڑے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نوں پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سے انہوں نے دیا۔ بڑے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اور ظالم ہے اپنا مل ویکھ تے یتیماں دا گھر ویکھ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ انہوں نے کہنا تو اتنی ظالم ہو گیا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا۔ وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تے کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے۔ بڑا ہی رویا حضرت۔ اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے۔ جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر اس نے کہا تقریباً 20-25 کے ارد گرد۔ اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو۔ وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا، روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تھے، یتیمہ دا گھر بن دیا، اندر ٹھنڈ اترنی حضرت۔ بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڈ کے آ گئے، وہ جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی نا تے لاچڑن لگے، وہ پھڑ کے انہیں نہیں مننی سنی۔ یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن بس پہ بیٹھے رہے، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ اس نے جب دیکھا اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے۔ اس نے کہا تو مریا نہیں؟ یا نہیں۔ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال۔ وہ ہسپتال لے گیا، جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں ہے۔ ہیں جی کلا بلا